हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 13.3 के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो है इसमें जो है आप जो भी समझ में नहीं आ रहा आप जो है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि पहले आप इसको जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जो भी डाउट है। Now the exercise 13.3. The question is here. The question number 1. What is the question here? A metallic sphere of the radius is 4.2 centimeter. A sphere, that is the sphere here. I have drawn the roughly figures. That is a sphere, and its radius is 4.2 centimeter. Is melted and recast into the shape of a cylinder. यानी इसको क्या किए, इसको जो है मेल्ट करके रिकास्ट किए. That is in the shape of cylinder of the radius is 6 centimeter and its radius is 6 centimeter. Find height of the cylinder. So what we have to find here, the height of the cylinder we have to find out. So first to find out this one, we have to write down the first given values. What is the given value? First, in the sphere, radius of sphere. So we can write here the R1. R1 is equal to 4.2 centimeter. Next the radius of the cylinder. Radius of cylinder. So this is, we have to take the R2 is the 6 centimeter. Next, height of the cylinder. Height of cylinder. Height of the cylinders we don't know, that's why we can write here the h is equal to the question mark. हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बनाना है. यहाँ पे स्फीयर दिया क्वेश्चन में, स्फीयर का रेडियस दिया, इसको क्या किए, मेल्ट किए, पिघला के क्या किए, सिलेंडर बनाए. सिलेंडर कैसे बनाए, इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू question, volume of sphere is equal to volume of cylinder. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि दोनों के लिए जितना भी जो क्वांटिटी लिए ना, सेम दोनों का इक्वली होता. सो दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल होता. व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब. सो इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आर इज, दैट इज R1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स पाई आर स्क्वायर h. सो हियर द R2. Now this pi get cancel, pi cancel. Now 4 divided by 3 R1 is 4.2 whole cube is equal to R2 is 6 centimeter and square we have to write down into h. Now 4 divided by 3 into 4.2 into 4.2 into 4.2 is equal to 6 6 is 36, 6 square is 36 into h. 36 को नीचे लाएंगे. सो 4 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाता है. जस्ट वी हैव टू रिड्यूस दिस वन. 3 1 जा रिमेनिंग 1, 3 2 जा रिमेनिंग 1 दैट वी हैव टू राइट हियर, दैट इज 12 एंड 3 4 जा 12. सो 4 into 1.4 into 4.2 into 4.2 is equal to 36 h. अब 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाना है. सो दैट इज 4 into 1.4 into 4.2 into 4.2 is equal to h. Here in the denominator 36 cross multiplications. Now again we want to reduce this one. 4 1 za 4 9 za 4 9 za 36. Then 3 is table, 3 3 za 3 1 za and 3 4 za, it is reduced. Again 3 1 za 3 1 za 3 4 za we get here. Therefore h is equal to 1.4 into 1.4 into 1.4. Now the h is equal to, finally when we multiply this 1.4 1.4 and 1.4 we get the 2.74 centimeter cube.
So this is the height of the cylinder. So hence height of cylinder is 2.74 centimeter, only the centimeter. Now because this is the height, सेंटीमीटर क्यूब कब आता, जब हम वैल्यूम फाइंड आउट करते तो सेंटीमीटर क्यूब आता. सो दिस इज ओनली द हाइट. सो जस्ट राइट डाउन द सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर. So now the question number second. Here the question number second is here. The metallic sphere of the radii is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively. There are three spheres and its radius is given here, that is the different. Means that is in a different shape. Are melted to form a single solid sphere. मतलब तीन जो है स्फीयर को मेल्ट कराए, पिघला के एक बड़ा वाला स्फीयर बनाए. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. तो जो बड़ा वाला जो स्फीयर बन रहा है ना, उसका हमको रेडियस फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. सो फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर. सो वी कैन राइट R1 is equal to 6 centimeter. So radius of second sphere R2 is equal to 8 centimeter. Radius of third sphere R3 is equal to 10 centimeter. Now according to the questions, according to questions, volume of three spheres is equal to volume of resulting spheres. Resulting sphere. Now volume of the three spheres, so we can write here. So volume of the sphere is 4 divided by 3 pi R1 cube plus 4 divided by 3 pi R2 cube plus 4 divided by 3 pi R3 cube is equal to this one, 4 divided by 3 pi R cube. Now here what is common here? 4 by 3 pi is common. So 4 divided by 3 pi in the bracket R1 cube plus R2 cube plus R3 cube is equal to 4 divided by 3 pi R cube. So pi cancel and 4 by 3 is cancel. Now substitute the value. So this R1 is the 6 cube plus R2 is 8 cube plus that is the 10 cube is equal to R cube. Now 6 cube and 8 cube and 10 cube. 6 cube is how much? 6 square is 36. 36 into 6, 216 plus 8 cube, 8 at the 64 into 8, 512 and this one is the 1000 is equal to R cube. So therefore R cube is equal to, add this one, how much it is? 1728. So just you can write R is equal to here cube root of 1728, that is R is equal to, ये कितना आ जाएगा? ये एक्चुअली 12 का क्यूब होता. So R is equal to 12 that is in a centimeter. So we should write down in a centimeters. R, that is the radius, is equal to 12 centimeter. So radius of
of resulting sphere is 12 centimeter. Like this way it comes. The radius is 12 centimeter. Now the question number 3. What is the question number 3 here? So according to that questions, I have draw the figures. There are two figures I have draw here. So a 20 meter deep well with the diameter is 7 meter. तो यहाँ पे एक well है. well क्या है, कितना डीप है? well, that is well किसे बोलते हैं? कुएं को बोलते हैं, कुएं बॉली. that is the 20 meter deep and is dug and the earth to form, and here its diameter is equal to 7 meter. And dug and the earth to form the digging is evenly spread out to form the platform. अब इसके क्या किए, इसका मिट्टी डिगिंग करके खोद के जो है यहाँ पे मिट्टी निकाले और सेम क्वांटिटी ऑफ द सॉइल इज यूज्ड हियर एंड फॉर्म द प्लेटफॉर्म. यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाए, सेम यहाँ की मिट्टी लाके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाए. फाइंड द एंड व्हाट इज गिवन हियर 22 मीटर बाय द 14 मीटर्स. सो इसका लेंथ कितना है 22 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 14 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. इसका प्लेटफॉर्म का हमको हाइट फाइंड आउट करना है. सो हियर हाइट ऑफ वेल क्या है, सिलेंडर शेप में है, सिलेंडर, दैट इज h1 इज इक्वल टू 20 मीटर. नेक्स्ट डायमीटर ऑफ well is equal to d is equal to 7 meter. So r is equal to 7 divided by 2 meter. So this is the 7 divided by 2. Next, in platform length is equal to 22 meter, breadth is equal to 14 meter and height is equal to question mark. क्योंकि हमको हाइट फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, so the volume of this well is equal to the volume of the platform. This is in a cylinder shape and this is in a cuboid shape. So volume of well is equal to volume of platform. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच. पर वॉल्यूम ऑफ द वेल में हम आर क्या लिए, आर तो आर ही लिए, यहाँ पे एच लिए h1, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज इन ए क्यूबॉइड शेप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो दिस इज 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर, 7 divided by 2 whole square into h1, that is the 20, is equal to length is 22 into breadth is 14 into h. Now 22 divided by 7 into 7 by 2 into 7 divided by 2 into 20 is equal to 22 into 14 into h. So 2 ones are 2 11s are 7 ones are 7 ones are 2 ones are 2 10s are. क्या रहे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या रहे यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h. Again cross multiply. This value we have to take in the denominators. 11 into 7 into 10 divided by 22 into 14 is equal to h. 7 ones are 7 twos are 11 ones are 11 twos are 2 ones are 2 fives are. So therefore h is equal to 5 divided by 2. So therefore h is equal to 2.5, that is in a meter. So write the meter. So therefore height of platform is 2.5 meter.
इस प्रकार से आएगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द फिगर इज हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ड्रॉ किया। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो यहाँ पे वेल है, उसका डायमीटर 3 मीटर है और इसको डग किए, डग यानी खोद के मिट्टी निकाले। कितना है इसका डीप, कितना है, दैट इज द 14 मीटर, 14 मीटर डीप। द earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring। मतलब इसके मिट्टी निकाल के अर्थ में से इसके राउंड शेप में यहां पे डाले, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जैसे बनाए, सर्कुलर रिंग। ऑफ विड्थ इज 4 मीटर, इसका विड्थ कितना हो गया 4 मीटर। टू फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट किसको बोलते हैं, सर्कुलर टाइप में जो प्लेटफॉर्म आता है ना उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो अब हमको इसका हाइट पता करना है। सो दिस h, ओके। नाउ फर्स्ट यू वांट टू राइट हियर height of well, that is equal to h1 is equal to 14 meter, and next is diameter of well, that is d is equal to 3 meter, 3 meter, so r is equal to 3 divided by 2 meter, उसका आधा, okay। Then this embankment is formed in the form of cone and in which the hollow regions, so embankment is formed in the form of cylinder in which हॉलो सिलेंडर, उसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर है, ओके। नाउ रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, दैट इज R1 इज इक्वल टू, अब ये 3 है ना तो ये भी 3 होता, इसका रेडियस कितना हो जाता उसका हाफ, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, दैट इज R2 इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा, देखो यहां से यहां तक कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस 3 by 2 plus 4, so 3 divided by 2 plus 4, so 2 4s are 8, so 3 plus 8 divided by 2 is equal to 11 divided by 2, this is the R2। यहां से यहां तक कितना हो गया, that is 11 divided by 2, 11 divided by 2। now we want to find out the height of this embankment, so according to the question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहां पे सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर क्या है और एक ये सिलेंडर है, बट दिस इज द हॉलो, मतलब खाली है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करना है, ये रेडियस हमको पता करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका वैल्यूम हम पता कर रहे, कौन सा है, बड़े वाले का, सो वैल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वैल्यूम ऑफ दिस स्मॉल सिलेंडर, इंटरनल जो सिलेंडर है, तब जाके ये रिंग का जो है वैल्यूम हमको पता चलता। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, वैल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ दैट एम्बैंकमेंट, ओके। मतलब यहां से जो मिट्टी निकाले इसका वैल्यूम,
यहाँ से मिट्टी निकाल के इसका प्लेटफॉर्म जैसे बनाए, तो ये वॉल्यूम और ये मिट्टी से जो बनाए ना, इसका वॉल्यूम दोनों का सेम ही होता। सो दिस वन एंड दिस वन। सो वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल कौन से शेप में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे इसके लिए हम r क्या लिए, दैट इज द r1, इसके लिए हम r1 ही लिए है ना। सो दिस इज द r1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो ये सारे का जो है वॉल्यूम कैसा आएगा, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस वन बड़ा वाला माइनस दिस वॉल्यूम ऑफ दिस वन। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों में हाइट तो कॉमन है, क्योंकि ये दोनों का हाइट, दोनों सिलेंडर का हाइट सेम ही है, एच आएगा, पाई भी कॉमन है, पर रेडियस दोनों का डिफरेंस है। एक का रेडियस कितना है, इसका वाला रेडियस कितना है, 3/2 है, और ये इतना वाला रेडियस कितना है, 11/2। तो फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा, 11/2, दैट इज द r2। सो दिस इज r2 एंड दिस इज r1। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। रफ करके मैं कराता हूं। सो नाउ, अच्छा हमने क्या लिखा था, पाई r1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर एच माइनस पाई r1 स्क्वायर एच। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो रहा, फर्स्ट दिस इज द h, बट हियर इन दिस वन अगर हम इसमें ले रहे, इसके लिए भी h हो रहा और इसके लिए भी h हो रहा, तो हम इसको देंगे h1 देंगे। दिस इज द h1 एंड दिस इज ऑल्सो ए h1। ओके, क्योंकि दोनों सेम हो रहे। सो अब हम क्या लिए थे वैल्यू, r2 लिए थे हम 11/2 दिस रेडियस, एंड r1 इज इक्वल टू 3/2 दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट हाइट ऑफ द वेल दैट इज h इज इक्वल टू 14 मीटर, और h1 हमको पता करना है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो अब इसमें और एक स्टेप लेंगे, पाई r1 स्क्वायर h इज इक्वल टू, पाई इज द कॉमन एंड रिमेनिंग h1 इज ऑल्सो ए कॉमन, दोनों में आ रहा, सो h1 इज ऑल्सो ए कॉमन। So r2 square minus r1 square. Now we put the values. So this one सिर्फ r का वैल्यू ही चेंज है यहाँ पे। So पाई गेट कैंसल, r1 स्क्वायर, r1 इज 3/2 होल स्क्वायर, h कितना है, h इज 14 इज इक्वल टू 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर इनटू h1। h1 नहीं है, हमको फाइंड करना है फाइनली। सो नाउ 3 square is 9 divided by 2 square is 4 into 14 is equal to 121 divided by 4 minus 9 divided by 4 into h1. Okay, so next 2 2s are 2 7s are, so 9 into 7 divided by 2 is equal to, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 121 minus 9 112 डिवाइडेड बाई 4 इंटू h1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लाएंगे। सो 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 121 इज इक्वल टू h1। रिड्यूस होता, 2 1s जा 2 2s जा 7 1s जा 112, सॉरी 112, हम इसको इधर लाए, 7 1s 7 7 1s 7, रिमेनिंग कितने बच रहे, 4 4 इधर लाए, 42 हो गया, 7 6 कट गया, 2 1s 2 8s, तो कितना बच रहा, 9 डिवाइडेड बाई 8। सो देयरफॉर h1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते। सो h1 इज इक्वल टू 8 1s 8, बच रहा 1, सो 0 लगाए, 8 1s 8, फिर 2 बच रहे, फिर 0 लगाए 20, 8 2s 16, 4 बच रहा है, 0 लगाए 40 हो जाएगा, 8 5s। So that is in a meter, we should write down the meter. Okay, this is the height of the embankment. So यहाँ पे क्या बोल रहा, find the height of the embankment. So therefore height of is 1.125 मीटर, इस प्रकार से आएगा। फिर ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जो है सिलेंडर जो बन रहा ना, एक तो बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है, एक अंदर छोटा वाला बन रहा है, एंड दिस इज द हॉलो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते,
सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस इंटीरियर सिलेंडर। अब जाके हमको एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम पता चलता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द डायमीटर 12 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर शेप में जो है एक कंटेनर है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो वो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर और उसका हाइट दे दिया। फुल ऑफ द आइसक्रीम, उसके अंदर क्या है, आइसक्रीम है, पूरा फुल है। सो द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ द राइट कोन ऑफ द राइट 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब उसमें से आइसक्रीम क्या कर रहे हैं, जो है कोन, जो आइसक्रीम के कोन्स आते हैं ना उसमें फिल कर रहे हैं। तो वो कोन का जो है हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हैविंग ए हेमिस्फियरिकल शेप ऑन द टॉप, आइसक्रीम के ऊपर एक हेमिस्फियर जैसे ऐसे हाफ सर्कल रहता है ना, हेमिस्फियरिकल टॉप है, आधा सर्कल के टाइप में, ओके, आधा बॉल। फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। ओके, आइसक्रीम कैसे आता है, आइसक्रीम ऐसे आता ना। सो दिस इज द आइसक्रीम, ये तो कोन हो जाएगा, फिर ऊपर क्या होगा, हेमिस्फेरिकल होगा, और एक बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर आइसक्रीम्स है, तो इसमें से लेके इसमें फिल कर रहे। सो दिस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ द आइसक्रीम्स। सो फर्स्ट यहां पे सिलेंडर दिया, सिलेंडर का क्या दिया, एक तो हमको डायमीटर दिया और एक जो है हाइट दिया। सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सो दैट इज D1 ले लेंगे, 12 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर, सो R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये R हो गया सिलेंडर का। देन हाइट ऑफ सिलेंडर, सो H1 इज इक्वल टू, हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का हो गया। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन, इनटू कोन्स ऑफ द हाइट, कोन का क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज दैट इज द, अब इसके लिए लेंगे हम H2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोन के लिए ये वाला कोन 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ, सॉरी, डायमीटर ऑफ सो डायमीटर ऑफ दैट कोन कितना है यहां पे, 6, सॉरी कोन, सो दैट इज D1 लिए थे, D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उसका आधा। हैविंग द हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप, तो इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, तो अभी जो हेमिस्फेयर यहाँ पे है ना, तो इसका रेडियस कितना होता, इसका जो रेडियस है कोन का, इसका भी उतना ही होता। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सो R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, कितने आइसक्रीम यूज हो रहे। सो लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आर n बोल के लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, लिखेंगे नहीं तो यहां पे नंबर ऑफ आइसक्रीम इज नंबर ऑफ द आइसक्रीम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ
ईच आइसक्रीम, मतलब जितने भी आइसक्रीम्स है ये आइसक्रीम का वॉल्यूम जो है ये कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता। तो अब ये कितने आइसक्रीम है हमको पता नहीं, सो एक का वॉल्यूम कर लेना है, लेके इनटू n करना, n इज द नंबर ऑफ द आइसक्रीम। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वायर h। तो r हम यहाँ सिलेंडर के लिए क्या लिए थे, R1 और H1 लिए थे। दिस इज द R1 एंड द H1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द आइसक्रीम दैट इज n। हम n लिए थे, लेट टू बोल के n लिए थे, है ना। सो n। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में दो है, वन इज द कोन एंड अनदर वन इज द हेमिस्फीयर। ओके, सो वी कैन राइट हियर, यहां पे फर्स्ट लेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h फॉर द कोन। फॉर द हेमिस्फीयर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो अब इसके लिए कोन के लिए क्या लिए थे हम, कोन के लिए हम जो है h2 लिए थे, h2 लिए, और इसके रेडियस के लिए r2 लिए थे। दिस इज द R2 एंड द H2। ओके, इसको रफ करता हूं मैं। नाउ पाई इज द कॉमन एंड R2 इज ऑल्सो ए कॉमन, सो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n इंटू पाई इज द कॉमन, R2 स्क्वायर इज कॉमन, रिमेनिंग इज 1/3, R2 कॉमन लिए, पाई कॉमन लिए, 1/3 H2 प्लस 2/3 पाई कॉमन, R2 स्क्वायर इज कॉमन, बच रहा क्या, R2 बच रहा, R2 स्क्वायर कॉमन लिए। नेक्स्ट पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, R1 स्क्वायर वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, R1 इज 6 स्क्वायर, H1 15 इज इक्वल टू n इंटू R2 स्क्वायर 3, सो दिस इज द 3 स्क्वायर, सो 1/3 H2 that is height of the cone, H2 is 12 into 12 plus 2 divided by 3, then R2 हम यहाँ पे लिए ना, R2 that is the 3, so 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा। now 36 into 15 is equal to n into 9, अब ये दोनों ऐड होते 4 plus 2 that is equal to 6, बाहर लाएंगे 6 आएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 इज इक्वल टू n। अब रेड्यूस करना है इसको, 6 1 जा 6 6 जा, ओके। नेक्स्ट 3 2 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 5 जा, खत्म। ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 5, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज दिस n? n क्या है, हम क्या लिए थे यहां पे, n इज द नंबर ऑफ द आइसक्रीम। सो देयरफॉर और हेंस नंबर ऑफ आइसक्रीम आर 10, R 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने ऐसे सिल्वर कॉइन्स होंगे, उसका जो है डायमीटर, उसका जो फर्स्ट डायमीटर दिया दैट इज द 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, तो यहाँ पे ड्रॉ किया मैं, दिस इज द डायमीटर 1.75 एंड द थिकनेस इज 2 मिलीमीटर, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। मतलब कितने ऐसे कॉइन्स हैं जिसको मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाए, जो क्यूबॉइड का डायमेंशन कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, दीज आर द डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट। तो हमको क्या पता करना है, ऐसे कितने कॉइन्स मेल्ट करके जो है ये बनाए। तो आपको पता है अभी जो क्वेश्चन किए ना वैसे ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ द cuboid is equal to number of the volumes of numbers of the coins, that is we can multiply n into, n is the number of the coins, n into volume of each coin. So first हम क्या लेंगे,
फर्स्ट डायमीटर ऑफ द कॉइन दिया, सो अब हम इसको लेंगे रेडियस ऑफ कॉइन दैट इज इन ए सिलेंडर शेप। ओके, सो रेडियस कितना होता है, इसका हाफ होता है। R1 इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका रेडियस हो गया, हाइट ऑफ कॉइन, सो दैट इज H1 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, तो इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2 डिवाइडेड बाय 10 इट बिकम सेंटीमीटर, और बस इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन, अब हमको क्यूबॉइड दिया। इन ए क्यूबॉइड L इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, breadth is equal to 10 centimeter and the height is equal to 3.5 centimeter। यहाँ पे एक हाइट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसे H1 लिया। नाउ अब इतना हो गया। नेक्स्ट हमको वैल्यूम पता करना है, तो वैल्यूम से पहले फर्स्ट हम क्या लेना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, let the number of the coins is n। okay, so let the number of the coins is n। according to the question, first हम क्या लेना है, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वैल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वैल्यूम ऑफ कॉइन्स दैट इज इन ए सिलेंडर शेप। मतलब कितने भी कॉइन्स हो गए, इट मे बी 10, 20, 50 वाट एवर, कितने भी कॉइन, 100 भी हो सकते, ये कॉइन्स एंड दिस इज द वैल्यूम ऑफ द कॉइन्स, दोनों मल्टीप्लाई किए तो सारे कॉइन्स का वैल्यूम हो जाता। सारे कॉइन्स का वैल्यूम किसके इक्वल होता, क्यूबॉइड के इक्वल होता। सो दिस इज द क्यूबॉइड, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू n इंटू दिस इज द वैल्यूम ऑफ द कॉइन। सो कॉइन कौन से शेप में है, सिलेंडर, सो दैट इज पाई r स्क्वायर h। तो इसके लिए हम क्या लिए थे, R1 और H1 लिए थे, R1 एंड H1, कंफ्यूज नहीं होना बोल के। सो here length is 5.5 into 10 into 3.5 is equal to n into 22 divided by 7 into R1 is 1.75 divided by 2 whole square into H1 that is 2 divided by 10 into 5.5 कितना हो जाता है ये 55 into 3.5 is equal to n into 22 divided by 7 into 1.75 divided by 2 into 1.75 divided by 2 into 2 divided by 10। अब क्या करें, सारे डेसिमल में ही है ना। इसको इजी वे क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल पॉइंट हमको हटाएंगे। सो फर्स्ट इज 55 एज इट इज इनटू 3.5 है, तो हम क्या कर सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 10 ले सकते हैं, बिकॉज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ओनली सिंगल वन डिजिट, एक ही डिजिट है ना, सो डिवाइडेड बाय 10 10 वाला नंबर ले सकते, इज इक्वल टू n इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, यहां पे क्या करना है, 2 डिजिट्स है, सो दैट वी हैव टू राइट डाउन 175 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इसके लिए और इसके लिए 2 डिजिट है, 2 0 वाला नंबर डिनोमिनेटर में लिए, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये सारे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट में लाना है। सो 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, अब ये आएगा
2 into 100 divided by 175 into 2 into 100 divided by 175 into 10 divided by 2 10 divided by 2 1 2 3 आए और एक ये रह गया. सो 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू n. अब रेडियस होता 10 1 10 1. So this 2 and this 2 cancel. Next 2 1 2 11 11 1 11 5 11 5. Next 7 1 7 1 7 7 2 14 रिमेनिंग 3 7 5 कट हो गया 25 में आ रहा. नेक्स्ट 25 1 25 4 25 4. नेक्स्ट 5 1 5 35 35 1 35 1 पूरे कट गए. डिनोमिनेटर में सारे कट गए है ना. ऊपर क्या बचे 4 into 100 4 into 100 is equal to n. Therefore n is equal to 400. What is that n? n क्या है? n is the number of the coins. So therefore number of coins are 400. इस प्रकार से करना है. ये डिवाइड में लिए तो इजी होता है इसलिए मैं ऐसे किया. डायरेक्ट डेसिमल नंबर लेके भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे? ए सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंडर शेप में बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई. उसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर एंड विद द रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर. जो बेस है ना उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है. इज फिल्ड विद द सैंड. दिस बकेट इज एम्प्टीड. इसके अंदर जो है सैंड है और इसको एम्प्टी कर रहे ऑन द ग्राउंड. ऑन ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. जब ये एम्प्टी कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो गया ग्राउंड में कोनिकल हीप बना. ऐसा बड़ा सा ढेर बनता है ना. सो दिस इज कॉल्ड द कोनिकल हीप इज फॉर्म्ड. इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर. अगर इसका हाइट जो है, इसका हाइट कितना आ रहा 24 सेंटीमीटर आ रहा. फाइंड द रेडियस एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द हीप. इसका रेडियस और इसका स्लाइंट हाइट हमको पता करना है. स्लाइंट हाइट बोल तो ये क्रॉस वाला हो गया और रेडियस हमको पता करना है. सो नाउ अब हमको इसको वैल्यूम लेके अगर हम फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रेडियस आता, फिर नेक्स्ट फार्मूला लेके हम स्लाइंट हाइट पता कर सकते. सो वैल्यूम ऑफ द बकेट इज इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ द सैंड हीप. सो फर्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ बकेट that is h1 is equal to 32 centimeter. Next radius of bucket r1 is equal to 18 centimeter. रेडियस हो गया. नेक्स्ट अब साइड में आएंगे. सो हाइट दिया यहाँ पे. हाइट ऑफ हीप, sand heap, that is h2 is equal to 24 centimeter. Next radius of heap, so that is r2 is equal to question mark. Then slant height of heap is L is equal to question mark. इसके लिए L. According to the question, क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, सैंड हीप. That is in a cylinder shape and this is in a cone shape. So now cylinder means you have to write pi
आर स्क्वायर एच, इसके लिए हम R1 लिए थे और इसके लिए R2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई R2 स्क्वायर एच, दैट इज फॉर द कोन. सो पाई पाई कैंसल, R1 क्या है 18 स्क्वायर, दिस इज द, इसके लिए भी चेंज किए थे H1 एंड H2. H1 इज 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू R2 स्क्वायर नहीं है हमारे पास, सो R2 स्क्वायर एज इट इज, देन H2 इज द 24, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे. सो दिस 18 वी कैन राइट द 2 टाइम्स 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू अब ये 3 ऊपर आएगा इंटू 3, नेक्स्ट ये 24 नीचे आएगा, सो डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे. नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 8 जा, देन 8 1 जा 8 4 जा, 8 4 जा, सो बच रहा क्या, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 4, सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 4. सो R2 इज इक्वल टू 18 बाहर है ना, बाहर आके क्या हो जाता 18, 4 आके क्या हो जाता 2 हो जाता, सो R2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. So what is this one? R2 is the height of heap, 36 सेंटीमीटर हाइट हो गया. अब स्लैंट हाइट पता करना है. नाउ स्लैंट हाइट ये L से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. H हमारा कितना है, H है 36 स्क्वायर प्लस R इज, R जो है 24 था वहां पे, 24 स्क्वायर. नाउ 36 स्क्वायर, 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करके चेक करना है, 1296 प्लस दिस इज द 576, 24 रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी, सो दिस इज द 8 8 16 एंड 17 एंड 1 कैरी, 6 7 8 एंड 1, 1872. अब इसको स्प्लिट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 इंटू 13 होगा. रफ पे चेक कर सकते हैं, मैं चेक किया है इसीलिए जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ. देन 144 बाहर आता, सो दैट इज 144 इज द 12 स्क्वायर, सो 12 अंडर रूट ऑफ 13, this is the centimeter and this is what L. Hence slant height is 12 अंडर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर. इस प्रकार से आएगा. ये फॉर्मूला हम करें, ओके ये याद रहना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे, वाटर इन ए कैनल, एक कैनल में वाटर जो है फ्लो हो रहा, तो कैनल क्या है 6 मीटर वाइड है, उसका विड्थ कितना है 6 मीटर है, और उसका डेप्थ कितना है, डीप कितना है, इसके लिए हम हाइट लेंगे, सो दैट इज द 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब कितना स्पीड से जा रहा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा. सो हाउ एरिया विल इट इरिगेट, कितने एरिया में पानी जो है एरिया में पानी जो है जा रहा इन 30 मिनट के अनुसार. इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब 8 सेंटीमीटर जो है पानी जो है वहां पे ठहरा हुआ है, खेत में जो पानी जा रहा ना, तो उसको इरिगेशन बोलते हैं. सो फर्स्ट जो वैल्यू दिया हमको लेना है, फर्स्ट विड्थ ऑफ कैनल 6 मीटर, डेप्थ ऑफ कैनल दैट इज 1.5 मीटर,
नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोस, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान से, यहाँ मीटर मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। हमको 30 मिनट के अनुसार पता करना है, पर यहाँ आवर है, सो सबको चेंज करना है। सो 10 इंटू 1000 किलोमीटर चलेगा, ये बन गया मीटर। अब इसको हटाना है, मिनट में करना है, सो डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसल, सो 1000 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर मिनट, पर मिनट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है वाटर का वॉल्यूम, दैट इज 6 इंटू 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 6, 6 कैंसल। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, सो ये आ जाएगा 1500 आएगा, 1500। सो दिस इज द वॉल्यूम, मीटर क्यूब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर in 30 मिनट is equal to 30 into 1500, so 3 zeros, 15 3 is 45 मीटर क्यूब। मतलब इतना वॉल्यूम हो रहा, इतना क्वांटिटी पानी जो है इरिगेशन के लिए जा रहा। अब हमको हाइट पता करना है। ओके, हाइट पता करने के लिए जो भी एरिया में जो है पानी जा रहा ना, सो ये शेप में, तो ये भी क्यूबॉइड में ही होता। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया। सो अब एरिया तो हमको आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। हाइट क्या होगा, हाइट हमको यहाँ पे दिए, इफ द हाइट इज 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग इज नीडेड। सो हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितना है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। सो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो 8 डिवाइडेड बाय 100, इट बिकम्स द meters. Now we have to write down the volume of the water in 30 meter of water in 30 minute flows. Okay, कितना पानी बह के जा रहा 30 मिनट में, is equal to this one, area into h, जो इरिगेशन लैंड है, एरिया इंटू h। तो ये कितना आया था हमको, 45,000 इज इक्वल टू ए इंटू एच, 8 डिवाइडेड बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ए। नाउ दिस इज 8 से जाता, 4 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, नेक्स्ट 2 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, रिमेनिंग 1 2 5 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 0 0 कैंसिल हो गया। सो a इज इक्वल टू 2 2 5 0 0 इंटू 25। सो a इज इक्वल टू दिस 2 0 एज इट इज। Okay, these 2 zeros as it is. Now multiply 225 into 25, 225 into 25, 525, 5825, 525. Check once again. 225 0 0 0 0 को बाद में लेंगे, 25
5 5 20, 5 5 25 2 carry 12 1 carry 10 11 plus 5 2 5 10 1 carry, this is the 5 and 2 2 4, so this is 5 2 6 5, so ये कितना आ रहा 5 6 2 5 0 0, दैट इज इन ए मीटर, सो मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर लिखना है, लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है। सो एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट, एरिया इरिगेट इन 30 मिनट कितना है, इज 562,500 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस प्रकार से आएगा। Now the question number 9 बच्चों, question number 9 is the last question in this exercise. So what is the question? A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter. एक पाइप है जो कैनल से कनेक्ट फ्रॉम ए कैनल से कनेक्ट कर रहे, इसके अंदर का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इनटू ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में कनेक्ट कर रहे, टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर है, एंड 2 मीटर डीप, और डीप कितना है 2 मीटर है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप, अगर पाइप से पानी फ्लो हो रहा एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ओके 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल्ड, मतलब कितने समय में जो है ये टैंक फुल होता हमको पता करना है। ओके सो नाउ फर्स्ट हम ये ले लेंगे, सो diameter of tank D1 is equal to 10 meter, so R1 is equal to 5 meter, उसका आधा हो गया रेडियस। देन हाइट ऑफ टैंक दैट इज H1 is equal to 2 मीटर, ये हो जाएगा। सो R1 और H1 हो गया। नेक्स्ट वन इन द पाइप, एंड द पाइप क्या दिया यहाँ पे पाइप में, सो डायमीटर इज इक्वल टू इसको लेंगे D2 इज इक्वल टू 2 मीटर, सो R2 इज इक्वल टू 1 मीटर, R2 is equal to 1 मीटर। नेक्स्ट अब यहां पे क्या दिया 2 है, इंटरनल पाइप 20 है, सो 20 सेंटीमीटर भी नहीं है, आप मीटर नहीं है, 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है ना, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, सो R2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये किसका है, ये वाला पाइप का है। ओके नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का एरिया दैट इज, हम ये खाली इतना एरिया हम पता कर रहे हैं, जब वैल्यूम पता करते एरिया इनटू हाइट होता, सो दिस एरिया फर्स्ट, एरिया इज द पाई आर स्क्वायर, सो अब यहाँ पाइप के लिए हम आर क्या लिए R2 लिए, सो दिस इज द R2, सो पाई 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 0.01, सो दैट बिकम्स 0.01 पाई, ऐसे आएगा। ओके ये पाइप का हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हमको क्या है यहाँ और एक, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से जरा वाटर फ्लोज एट रेट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर को हटाएंगे मीटर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर यूज़ किया है।
So 3 into 1000, 3 into 1000 मीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 3000 मिनट पर आवर। नेक्स्ट, चेंज दिस इनटू ए मिनट। अगर हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर मिनट। 0 0 कैंसल, 6 1 जा 50 जा, सो कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 50 मीटर की स्पीड से जा रहा पानी। ओके, नाउ एरिया ऑफ द, सॉरी एरिया तो हो गया हमारा। एरिया कितना लिया? एरिया यहाँ पे कितना आया? सो एरिया इतना आया। नाउ अब हमको वैल्यूम करना है, वैल्यूम पता करना है, वैल्यूम ऑफ द पाइप। सो एरिया इनटू हाइट, वैल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी उसमें से फ्लो होके जाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया, एरिया इंटू हाइट, एरिया क्रॉस एरिया इंटू हाइट। तो क्रॉस एरिया कितना होता? ये होता 0.01 पाई इंटू 50। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द वाटर फ्लोइंग इन द 1 मिनट। कितने मिनट में पानी जा रहा? 1 मिनट में कितना पानी जा रहा? सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 50। ओके, 1 मिनट में इतना पानी जा रहा, तो ये इतना क्या हो जाएगा हमारा? उसके अनुसार हाइट हो जाएगा। सो दिस क्रॉस सेक्शन इज द एरिया इनटू हाइट। तो ये मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? दैट इज 0.5 पाई, 0.5 पाई। नाउ वी हैव टू टेक लेट t is the time taken to fill the tank. Now volume of tank is equal to T into volume of water flows in 1 minute। मतलब इसका जो वैल्यूम है ना, किसके इक्वल होगा? T इंटू वैल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोस इन द 1 मिनट। अंडरस्टूड? इससे पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे n बोल के यूज किए थे, ऐसे यहाँ पे कितने मिनट में जो पानी जा रहा, दैट इज इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ दिस टैंक। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में जा रहा, सो 10 इंटू वैल्यूम ऑफ 1 मिनट, सो दिस कंप्लीट इज इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ द टैंक। सो अब वैल्यूम ऑफ द टैंक के लिए, दिस इज इन ए सिलेंडर शेप, सो पाई r स्क्वायर h, तो इसको लिए r1 r2 लिए थे हम, r1 h1 लिए थे, is equal to t is the time taken to fill the tank into volume of the water flows in 1 minute। अभी फाइंड आउट किए थे, क्या आया था? 0.5 पाई। सो दिस पाई कैंसल। सो R1 इसको लिए थे हम, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना होता? 5 होता। सो 5 स्क्वायर इंटू h इज द हाइट 2 इज इक्वल टू t इंटू 0.5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं। डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है, सो डिवाइडेड बाय 10 इधर लाएंगे। 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी। 5 1 जा 5 5 जा, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 इज 100। सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 100, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 100। Hence the tank fill completely in 100 मिनट,
क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मिनट में चेंज किया था, तो आंसर भी क्या होगा, मिनट में आएगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो भी समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।